this is a hydrometer. This is an instrument used for measuring the density of liquids. So as you know, that different liquids have different densities. So like this is used to measure the density of liquids. So basically, this is used in suppose yeah, I'll just show it. So if I fill more water in it, I've placed it. So this is the marking scale. So um, You want to suspend it, hold it like this, ऐसा ही गोला बना के, हाँ, so it will hang out. So it's suspended, right? hmm, yeah. So uh, hmm. So I dip it and the water level, suppose it comes here in this, I've marked it well. So if it comes here, then we can see that this is the density of this liquid. So basically it's used when suppose there is a juice, I dip it inside it. So with this we can find like how much sugar is present in the liquid. So the higher it floats, so if I dip it and the higher it floats, um, the higher it floats, the more is the density of the liquid. And if I dip it, the lower it floats, there is less density. So as you know that sugar is heavier than water. So if I place it, yeah. So if I place it, it will start floating upwards. So this means that there is more sugar in the liquid. And if it sinks, then we can say that there is less sugar in the liquid. So it is used in like the milk industry to find how much fat is there in the milk, or like in juices, or stuff like that. And then it works on the principle of buoyant force. Um, and this is the syringe, this is the base part. This provides a supportive base when I dip it in the liquid, and this is the stick. This acts as a marking scale. So I've marked it here so we can see how much is the level of the water and how much is the density. Um, yeah, and as I said that it is used to measure the density of different liquids. So the density of liquids differs because of the mass of the molecules. So due to the mass of the molecules with which the liquid is made up of, it depends on the density. Um, so that's why the density of different liquids is different. Um, Madam, you said that it is used to measure the density of the liquid. क्यों measure करनी है density? क्या होगा उससे, मुझे क्या पता चलेगा density measure करके? okay, suppose suppose there are two juices. One has more sugar in it and one has less sugar in it. So one is pure and one is not pure. So दूसरे में added sugar added है, sugar. extra sugar. So this is container A and this is B. Both of them consist of juices, and this has more sugar and this has less sugar. So if I, and this is pure and this is impure. So if I dip it, so if I dip it, it will. If I dip it, it will. Show it, no? Draw it. Yeah, or you can put it over there. No, you can put it on the board and show. What you're saying, show it. Yeah. If I dip it inside, so it will sink a little. It will sink more. So by this
it has less sugar, and if I dip it here, it will float a little bit higher. So this means it has more sugar in it. So we can tell which uh, which juice is pure and which is added sugar. So same as with milk also. Like we add water in milk, so like we can find out which milk is pure and which milk has more water added in it. Okay. I have this one question. So this is a scale. So it has 1, 2, 3, 4 mark on it, right? How did you mark it? Where did you get these markings? जैसे 1 है वो कैसे मार्क किया तुमने? Like I took a regular scale and then. How did you mark? How did you find the position? कहाँ पे 1 मार्क करना है? Position कैसे find की? अंदाजे से तो नहीं लगाया होगा ना, कहीं पे भी लगा दिया होगा, क्या किया कैसे? I took a scale and then I kept it like here, and then with that markings I marked it. On what distance? Yeah. How do you see? तुमने मान लो सपोज इसको वाटर में डिप किया. वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम वाटर आता है. ठीक है, तो दिस स्केल शुड शो 1 शो करना चाहिए स्केल. मतलब ये स्केल अगर मैं प्योर वाटर में डिप करूंगा तो इस स्केल में जहां पे 1 मार्क्ड है, 1 फर्स्ट पॉइंट, वहां तक डिप होना चाहिए, वो शो करना चाहिए, राइट? वो कैसे होगा? मतलब वो वाटर लेवल जितना मैं kind of पूरी बात बोल रहे थे क्या? like I marked it with the difference of 1 centimeter between all this, and if I dip it in water, then suppose it's the level is still here. If I dip it in water and the level is here, so we can tell that this is the level till which the water is there and the density. Why you not completing the statement? ऐसे धीरे क्यों होते जा रहे हो? पूरी बात बोलो ना अच्छे से. हाँ, continue. When you are speaking, तुम ऐसा लो क्यों होते जा रहे हो धीरे धीरे? वो बात सुननी बंद हो जाती है. एक ही टोन में बोलते जाओ ना, क्या कह रहे हो? हाँ, come on. So जब मैं if I dip it in water, ठीक है. so I should have added more water. That's fine. Dip कर दिया. And the water level is, suppose it's coming till here. Okay. This point. So with this we can tell that how this is the water level and how much is its density. How would you tell the density? कैसे? अच्छा, another question. देखिए water level जितने जिस मार्किंग तक आता है तो उससे हम देख सकते हैं कि कितना है, कितनी है उसकी डेंसिटी. इसकी डेंसिटी जिस मार्किंग तक आता है. So my next question, अगर इस हाइड्रोमीटर को इस कंटेनर में हमने डिप किया और इसी हाइड्रोमीटर को अगर मैं लेक में जाके डिप करता हूँ या स्विमिंग पूल में जाके डिप करता हूँ, तो क्या हमेशा सेम मार्किंग पे रीडिंग आएगी या नहीं, या ऊपर नीचे होगी? Same, yeah, because water is same everywhere, so then unless assuming water is pure, yeah, unless there is impurities, unless there is correct. yeah. So you are saying that तो अगर मैं इसको प्योर वाटर में एक बार डिप कर देता हूँ तो मुझे वो मार्किंग मिल गई, then I can mark that and use it everywhere. That's so what. if I dip it in another container and if the marking is not coming correct, so then I can tell that this is not pure water. Absolutely. How will you mark the second point? ठीक है, one वाला आ गया, प्योर वाटर में डिप करके मार्क मिल गया तुमको. सेकंड पॉइंट कैसे मार्क होगा? जितना वाटर लेवल का तो वाटर का मार्क कर दिया तुमने, डेंसिटी कहाँ पे आ रहा है वो मार्क कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी तो मार्क करोगी जिसकी डेंसिटी 2 हो. वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम आता है. अब इसकी डबल डेंसिटी वाला लिक्विड जो है उसका भी तो पॉइंट मार्क करना होगा, वो कैसे मार्क किया?
1 के बाद 2 भी तो चाहिए मुझे, फिर 3 भी तो चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, तो 1 के बाद 2 कैसे मार्क किया? इसमें एक एक सेंटीमीटर का गैप लेंगे, लेकिन ये एकदम रेगुलर स्केल की तरह है। बट बेटा वो नेसेसरी नहीं है ना, तुम जब like in lactometers and different types of hydrometers, there is a different type of scale. So यस अग्रीड, बट तुम्हारा जब 1 वाला मार्क हो गया 1.4 है जहाँ पे वो वाटर प्योर वाटर में डिप हो रहा है जहाँ तक, ठीक है, वाटर का डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसे डबल डेंसिटी लिक्विड में इसको डिप करता हूँ तब ये 0.2 शो करना चाहिए। डबल मतलब 2 मतलब 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में करता हूँ तो 3 वाले पॉइंट पे आना चाहिए। तो ये तो हमको बनाना पड़ेगा ना, ये जरूरी थोड़ा है 1 सेंटीमीटर पे, जरूरी है 1 सेंटीमीटर पे है, वो तो लेंथ का है। यहाँ पे तो तुम्हें डेंसिटी की मार्किंग करनी है। तो जैसे तुमने वाटर के लिए किया वैसे ही तुम्हें उससे डबल डेंसिटी वाले के लिए भी यही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। सपोज डबल डेंसिटी सपोज ग्लिसरीन की होती है, मुझे पता नहीं है ग्लिसरीन की नहीं है, मान लो ग्लिसरीन की 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, डबल है वाटर से, तो उसमें इसको डिप करके सेकंड पॉइंट फाइंड होगा। ये नहीं किया क्या अपन ने? किया salt water. हम उसमें सॉल्ट ऐड कर रहे थे टू इंक्रीज द डेंसिटी टू फाइंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द स्केल, राइट? दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, दैट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है। Any Like question? in laboratories where they use with very different type of solutions, so like they have a different scale. Like not, I've just made a regular scale, but they have like point 0.02, then 0.04, like that with minus markings. Fine, ठीक है। Any questions, guys? No sir. Anything? Yes. अगर इसके बीच में मार्किंग आएगी तो विल अगर 1 और 2 के बीच में मार्किंग आता है तो यू विल कंसीडर इट 1.5 वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम्स है मास का? तो अगर वो 1.5 आता तो मींस उसकी डेंसिटी 1.5 है। I think what he means to ask is कि जरूरी थोड़ा डेंसिटी 1 हो 2 हो या 3 हो, उसके बीच में भी हो सकती है, तो तुम्हें उसके बीच में भी छोटी छोटी मार्किंग करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। And जैसे why this like 0.5 marking. okay. And why this base has been put on it in this? Like to provide support, if I just did the stick like this, then like it obviously it will sink and it will not be able to float. It will be tilted to only one side. So this is to like provide a flat base. Okay. See, it's not. But there is one more reason to it. It's not tilting. There is one more reason. तुमने शायद पता नहीं ध्यान नहीं दिया होगा उस रीजन पे। इस सिरिंज के अंदर जितनी तुम सैंड भर सकते हो उससे तुम कंट्रोल कर सकते हो कि वो कितना डीप जाएगा, वो तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन एक बार वो कंट्रोल करके तुमने इसको पैक कर दिया उसके बाद ये परमानेंट हो गया, देन यू कैन नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल तुमने अभी इसको पानी में डिप किया अभी और तुमने एक जगह 1 का मार्क लगा दिया, अब तुम इसकी सैंड चेंज कर सकते हो क्या? इसके अगर सैंड चेंज करोगे तो ये अब डिफरेंट लेवल तक डिप होगा और 1 का मार्क चेंज करना पड़ेगा, है ना? वो स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट करने के लिए यू हैव अ स्कोप कि तुमने कितना सैंड भरना है अपने हिसाब से देख लो, वो स्कोप तुम्हें ये सिरिंज दे रहा है। गेट इट? मुझे लगा तुमने बनाया, तुम्हें पता होगा ये, आई डिडंट नो दैट। ओके दैट्स फाइन। एनीथिंग एल्स गाइस? एनीथिंग? या So one question. Yeah. What if the sand is more? Then what if it sinks? Yeah, that's why she cannot have more than the sand what is required, obviously. But this can only measure the density of liquids. What about solids? अगर मुझे solids की density भी पता करनी है, भाई solid pure है कि नहीं है, suppose this is copper wire, right? This one, इसका मुझे पता करना है कि whether this is pure copper or not. Obviously मैं ये तो use नहीं कर सकता, तो
इसका कैसे कर सकते हैं, एनी आइडिया? So this is pure Maybe cotton. a different instrument. Different something? Think about it. I still think we can. Maybe not by measuring, by comparing something. Think about it. Think about it. Yeah. You said in between a lactometer. What is a lactometer? Something like that. Like it's also a type of hydrometer. It is used to measure the density of milk, which is pure. So there are many types. There are different types of hydrometers. So can't we use hydrometer for measuring the density of milk? Yeah, we can use, but like there are, it's different for measuring the density of milk, and like there are different types of measuring the different liquids. So they have different markings upon it. And if she is saying that hydrometer इसको भी यूज कर सकते हैं मिल्क का डेंसिटी फाइंड करने के लिए, if she is saying that, तो फिर लैक्टोमीटर की जरूरत क्या है? फिर इसी को क्यों नहीं यूज करते? अलग से क्यों बना रखा है? मैंने बोला ना अलग अलग सबका क्यों बना रखा है? जब आप एक ही को यूज कर सकते हो तो अलग से क्यों बनाया है? I think maybe the markings would be different. Different as in how different? Like I don't know, I have to check. बट इट्स बहुत सिंपल है एक्चुअली। जो थर्मामीटर तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, क्या वो आयरन की रॉड कितनी हॉट है उसके लिए यूज हो सकता है क्या? आयरन की रॉड का जो रीडिंग है वो तुम्हारी थर्मामीटर में फिट ही नहीं हो रहा है, वो बहुत हाई है। तो मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो स्पेसिफिकली मेटल के टेम्परेचर्स को, हाई टेम्परेचर्स को रीड कर सके। वो तुम्हारी बॉडी को नहीं रीड करेगा फिर, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर्स आर वेरी लो एज कंपेयर्ड टू दी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स। यस टंगस्टन। तो उसके लिए मुझे एक अलग ही स्केल चाहिए होगा। हो सकता है मिल्क का डेंसिटी का डिफरेंस विद अदर लिक्विड इज सो डिफरेंट कि उसके लिए एक अलग स्केल बनाना पड़ा। मे बी हो सकता है उसमें एक सिरिंज के अंदर ज्यादा मिट्टी डालनी पड़े जिससे वो डिप तो हो। आई एम जस्ट सेइंग, सजेस्टिंग, क्योंकि डेंसिटीज में बहुत फर्क होता है। एक ही स्केल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर Measuring all the हाँ, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत है यार। लिक्विड्स की डेंसिटी बहुत हाई भी होती है, मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई है पानी से, तो ये शायद उसमें डिप ही नहीं होगा। So according to that, we have to make the scale. तो ऐसे सोचो, ये वाला जो तुम्हारा हाइड्रोमीटर है, इसको अगर तुम मरकरी में जाकर डिप करोगे, अगर मरकरी की डेंसिटी इज वेरी हाई देन वाटर, ये प्रोबेबली उतना डिप ही नहीं होगा कि तुम्हारा स्केल मरकरी के अंदर जा सके और तुम्हें रीडिंग दे सके। तो तुम्हें इसमें ज्यादा सैंड डालना पड़ेगा जिससे इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो और वो उसके अंदर और जाए। तो स्केल विल बी डेवलप्ड लाइक दैट फॉर मरकरी स्पेसिफिकली। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेंपरेचर। सो दैट्स व्हाई प्रोबेबली दैट्स व्हाई मिल्क के लिए अलग है। मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मिल्क का डेंसिटी बहुत डिफरेंट होता है, बट मिल्क में फैट कंटेंट कितना है वो जानना तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी में बहुत वेरिएशन आता होगा। And in juices and maybe sugar content. यस, काफी फर्क आता होगा क्योंकि मिल्क में फैट कंटेंट बहुत भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डेंसिटी में विल बी देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। और कितना फर्क है उसके लिए हो सकता है कि छोटी-छोटी मार्किंग्स करनी पड़े। फुल फैट में कितना आ रहा है, उससे 10% कम फैट में कितना, तो द स्केल विल बी डेवलप्ड लाइक दैट स्पेसिफिकली फॉर मिल्क वेरिएशन। मिल्क के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वाटर के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस नहीं होते। यस या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी मिट्टी डालनी है? As he said that मरकरी में वो इतना डिफरेंट नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी मिट्टी डालनी है? मरकरी में तुम इसे डिप कर रही हो और ये पूरा डिप हो नहीं रहा है, तो कैसे मिट्टी कैसे कितनी डालनी है कैसे पता चलेगा तुम्हें? Is it that कि ये जो syringe with that कि जब तक वो यहाँ तक नहीं आ जाता, तब जब तक वाटर यहाँ तक नहीं आ जाता और तब तक उसे मिट्टी डालना ही पड़ेगा, सब कुछ होता है। मुझे जेन्युइनली नहीं पता क्या करोगे तुम अगर ये मरकरी में डिप किया और पूरा डिप हो नहीं रहा है, स्केल तक तो आ ही नहीं रहा मरकरी, डिप हुआ नहीं, तो क्या कर सकती हो? तो उतना सैंड डालना पड़ेगा जब तक डिप dip हो। और अगर तब भी ना हो तो प्रोबेबली यू कैन यूज समथिंग व्हिच इज मोर हेवियर देन सैंड। Yeah. आयरन का लिक्विड है, कुछ भी हो, समथिंग सो दैट उतना नीचे जाए। बेसिकली इसकी डेंसिटी इंक्रीज करनी है, तो मास भरते जाओ इसके अंदर। शाबाश, वेरी गुड।
Absolutely. Yeah. Yeah. Okay. Anything else you want to say? You? No, sir.